بھائی ہیں، میں کراچی گڈس کیریئر ایسوسیشن، اور آپ کے سامنے اس وقت پاکستان کے تمام شہروں کے ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے نمائندے موجود ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ میں باقاعدہ شروع کرتا ہوں جی۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں، کیمرہ مین حضرات، السلام علیکم۔ ہم کراچی گڈس کیریئر ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کے صحافی حضرات، پرنٹ میڈیا کے دوستوں اور الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں، تمام کیمرہ مینوں کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا موقع بیان کرنے کے لیے اپنے یہاں جگہ دی۔ 6 کینال کے متنازع ایشو پر ہونے والے دھرنے کے حوالے سے موجودہ حالات میں گڈس ٹرانسپورٹ کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ظلم، موجودہ دھرنے کی وجہ سے ملکی معیشت کے نقصانات اور ان کے اثرات کے حوالے سے ہمارے موقع کو سننے کے لیے آج ہم آپ کے پاس موقع کو بیان کرنے کے لیے آج ہم آپ کے پاس موجود ہیں۔ ان دھرنوں کی وجہ سے گزشتہ 12 دنوں سے سندھ اور پنجاب بارڈر کی مکمل بندش کی وجہ سے جہاں انٹرنیشنل دنیا میں پاکستان کی حکومت کی سرخی ہو رہی ہے اور اسے ہمارے ملک دشمن انڈیا نے اپنے مفاد کے لیے کراچی کی لوکل انڈسٹری سے سینکڑوں مال بردار گاڑیاں جن میں خام مال، امپورٹڈ کیمیکلز، مشینری، پیٹرول، ڈیزل کے سینکڑوں ٹینکر، گیس ہوزر، کولے سے لوڈ سینکڑوں ٹرک و ٹرالر سمیت کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر ضروریات کی اشیاء سے لوڈ سینکڑوں گاڑیاں اس وقت سندھ کے مختلف شہروں میں بزرگ طاقت روک دی گئی ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے دیگر صوبوں پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ہزاروں گاڑیاں جن میں ایکسپورٹ کا سامان لوڈ تھا اور درآمد ہونے والے آلو کے کنٹینر، سبزیاں، کراچی شہر کے لیے جانے والے قربانی کے جانوروں کے 300 سے زائد ٹریلرز 12 دن سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں سندھ کی شہروں کو بے یار و مددگار کھڑے ہیں۔ پورے ملک کا معاشی نظام تباہ ہو چکا ہے اور ملک کے کاروباری لوگوں کو کروڑوں روپے کا نقصان روزانہ ہو رہا ہے۔ ان 40,000 گاڑیوں کو جو کہ اس وجہ سے رکی ہوئی ہیں، بیشتر سامان ان میں جو لوڈ ہے وہ خراب ہو چکا ہے، جس سے اربوں روپے کا نقصان ہوگا اور ان تمام وپاریوں کا جن کا وہ سامان ہے۔ کراچی و پورٹ قاسم پر بر وقت ایکسپورٹ کے سامان نہ پہنچنے کی وجہ سے ایکسپورٹرز کو نقصان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ساکھ کو جو نقصان ہوگا وہ اس کا بہت شدید امپیکٹ آئے گا۔ اور امپورٹڈ پاکستان کی موجودہ حالات میں ہمارے درجہ ذیل مطالبات ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان مطالبات پر عمل نہ کیا گیا تو ہم پاکستان میں اپنا کاروبار جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ سب سے پہلے پاکستان بھر میں قومی شاہراہوں کی بندش کو قومی جرم قرار دیا جائے اور احتجاجی مظاہرین کو کسی بھی صورت کسی بھی قومی شاہراہ کو، صوبائی یا قومی شاہراہ کو بند کرنے کی اجازت کسی صورت نہ دی جائے اور ایسا عمل کرنے والوں کے ساتھ حکومت آئینی ہاتھوں سے نپٹے۔ موجودہ 6 کنال کے متنازع فیصلے کے خلاف جاری دھرنے کو فی الفور ختم کروایا جائے اور اس کو مزید پرولونگ نہ کیا جائے۔ اس دھرنے میں شہید ہونے والے 3 ڈرائیوروں کے اہل خانہ کو فوری طور پر 1 کروڑ روپے فی ڈرائیور ان کے ورثاء کو دینے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ دھرنے کی وجہ سے ایکسپورٹ امپورٹ کے جو کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی ڈیمیج وغیرہ چارج نہیں دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت فوری طور پر وزارت شپنگ کے ذریعے تمام شپنگ کمپنیوں کو پابند کریں کہ وہ کسی کنٹینر کے ڈیمیج چارجز وصول نہ کریں، جو کہ $300 فی کنٹینر پر ڈے کے حساب سے چارج کیا جاتا ہے۔ دھرنے میں رکی ہوئی 40,000 گاڑیوں کو ہونے والے نقصان کی صورت میں $15,000 فی گاڑی فی یوم دیا جائے۔ ان دھرنوں کی صورت میں ان گاڑیوں میں لوڈ سامان کے خراب ہونے کا کسی قسم کا کوئی کلیم پاکستان کا کوئی ٹرانسپورٹ ادا نہیں کرے گا۔ ایسے تمام کلیم کی ذمہ داری اب حکومت وقت پر ہوگی۔ پورے ملک میں ہر 3 ماہ بعد ٹول ٹیکس کی مد میں کیا جانے والا ظالمانہ اضافہ فوری طور پر واپس لیا جائے۔ پورے ملک میں تمام مال بردار گاڑیوں، ٹرک، ٹریلر، مزدہ وغیرہ کو ٹول ٹیکس میں 50% چھوٹ 6 مہینے کے لیے دی جائے۔ فوری طور پر 6 دن کے لیے وے اسٹیشن کا نظام یعنی کانٹوں کا نظام، جہاں پر لمبی لائنیں لگتی ہیں کانٹا کرانے کے لیے، ان 40,000 گاڑیوں کو اگر کانٹوں پہ چڑھایا گیا تو کم از کم 4 دن ٹریفک اور نہیں جلے گی۔ لہٰذا 40,000 گاڑیوں کی آمد و رفت بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 6 دن کے لیے وے اسٹیشن جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور گاڑیوں کو گزر دیا جائے۔ اس کے بعد ایکسل لوڈ ایک ایسا ناسور ہمارے ملک میں بن چکا ہے کہ جس کی وجہ سے پورے ملک کی لوگوں کا تباہی تو ہوتی ہے۔ ایکسل لوڈ مینجمنٹ کے مکمل نفاذ میں NHA اور موٹر وے پولیس کے گورنمنٹ گڈس فارورڈنگ ایجنسی، کراچی گڈس کیریئر ایسوسیشن کراچی، پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن لاہور، آل پاکستان کار کیریئر ایسوسیشن کراچی، آل کار کیریئر ایسوسیشن کراچی، آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ آنر ایسوسیشن کراچی، پاکستان گڈس کیریئر ایسوسیشن کراچی، آل گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن حسن عبدال ایکسلا، ڈمپر ایسوسیشن پنڈی اسلام آباد ہزارہ ڈویژن، فرینڈز ٹریڈر ٹرک ڈمپر آنر ایسوسیشن، گڈس ٹرانسپورٹ آنر ایسوسیشن گجرانوالا، گجرات گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن گجرات، دی فیصل آباد گڈس کیریئر ایسوسیشن فیصل آباد، ملتان مظفر گڑھ کنٹینر ایسوسیشن ملتان،
चकवाल गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चकवाल, पिशावर गुड्स कैरियर एसोसिएशन पिशावर, ऑल पाकिस्तान मर्जा गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन कराची, ऑल खैबर पख्तूनख्वा गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड अड्डा ओनर फेडरेशन। इसके अलावा यहाँ हमारे साथ चंद ऐसे दोस्त भी मौजूद हैं जिनके पास 400 बयान किए और जो हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों के जितने मसाले हैं वो आपने सुन लिए। इस पे हमने ये फैसला किया है कि अगर 24 घंटे में इस पे अमल दरामद नहीं हुआ तो हम लोड गाड़ियों के साथ इस्लामाबाद आएंगे। पूरे इस्लामाबाद में जो है लोड गाड़ियाँ होंगी। हम 24 घंटे का वक्त स्टेट को देते हैं कि इस मसले को हल करें, क्योंकि इससे हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं, ड्राइवर हैं, कैलेंडर हैं, 50 सेंटीग्रेड में उनकी तबाही हो चुकी है, मालों की तबाही हो चुकी है और रोज़मर्रा का ये एक निज़ाम बन चुका है। इसलिए अगर स्टेट ने 24 घंटे में इसको हल नहीं किया तो हमारा रुख टेक्सला से सीधा इस्लामाबाद की तरफ होगा, लोड गाड़ियों के साथ होगा। और साथ में ही जिस टाइम हम चलेंगे उस वक्त हम पूरे पाकिस्तान में अपने ट्रांसपोर्ट को खड़ा कर देंगे। हम कोई भी काम उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि हम हमेशा, मैंने देखा आपके टीवी चैनल्स पे कि हम जो भी बात करते हैं आप लोग जो तवज्जो देते हैं। मैं सिंध के गवर्नर साहब को देख रहा था, मैं MQM हकीकी को देख रहा था, MQM को देख रहा था, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, सारी सियासी पार्टियां जितनी भी हैं। जब कराची में हर सुबह एक डंपर से आदमी फौत होता है, 2 होते हैं, फैमिलियां फौत होती है, तो आप लोग कहते हैं जी डंपर की ड्राइवर के खिलाफ FIR गिरफ्तार किया। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने कहा ये मसला क्या है, ये होता किस चीज से है, क्योंकि उस मसले को ये हल ही नहीं करना चाहते, ना सिंध ना फेडरल गवर्नमेंट। मसला ये है कि वो गाड़ी ओवरलोड होती है और वो लोड जो होता है एक सरमादार का होता है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट का होता है जो इस मुल्क को जो है उसने हाईजैक किया हुआ है। इस वक्त अगर सीमेंट की गाड़ियां लोड होती है, अक्सर लोड, और उसके आपके सामने इस पिंडी में 2-3 एक्सीडेंट हुए, बहुत सी फैमिलियां मरी। किसी ने ये नहीं पूछा कि जिस फैक्ट्री का सीमेंट था उसको बंद किया जाए, ड्राइवर को पकड़ा जाए। तो इसलिए चाहिए है कि सोर्स जहां से ओवरलोडिंग होती है और ये जो एक्सल लोड के कांटे हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत इसलिए है कि दुनिया में डिमांड है और इसमें जो हमने बाकी मुतालबात दिए और सबसे बड़ा मुतालबा है कि फौरन हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस रोड को खोला जाए, वरना कल हम लोड गाड़ियों के साथ, सीमेंट की गाड़ियों के साथ, स्टील की गाड़ियों के साथ, क्रश की गाड़ियों के साथ हम इस्लामाबाद में आएंगे, हजारों गाड़ियों के साथ, और पूरे पाकिस्तान में अपनी ट्रांसपोर्ट खड़ी करेंगे। और ये हमारा हतमी फैसला है सारे ट्रांसपोर्टरों का। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें मीडिया भी, क्योंकि जो गाड़ी आप लोगों को कुचलती है, पाकिस्तान कौन को कुचलती है, कल के आप भी के भी बच्चे भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं कि पीछे आपको पता ही नहीं, आप रोड पे चल रहे हो, पीछे से कोई गाड़ी आपको कुचल दे। इल्जाम में हमें ठहराया जाता है, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं उनसे कोई आज तक पूछा नहीं, किसी की फैक्ट्री को बंद नहीं किया गया, किसी की गोदाम को बंद नहीं किया गया और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया में रवाना हुए, कराची से लेकर सखर पहुंचे, वहाँ एक अजन करने वाले के पास थे हम लोग। सर तारुफ करवा दीजिएगा। जी, मलिक शेर खान मेरा नाम है, प्रेसिडेंट ऑफ कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन। जब मैं सखर पहुंचा तो बड़ा पूरे पाकिस्तान में शोर है कि इतने लोग रोड बांधे हैं, आप यकीन जाने के मुट्ठी भर लोग बैठे हैं जो पूरे पाकिस्तान को जर्मनान उन्होंने बनाया। मैं पूछता हूँ इस वफाकी हुकूमत से कि ये मुट्ठी भर लोग आपसे नहीं उठते, कि खामोशी है आपको, क्यों नहीं उठाते, क्यों बर्बादी कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की। आज अरबों रुपए का माल रोड पे गाड़ियां खड़ी हैं, 12 दिन हो गए, कोई इसका सही नहीं है। आप यकीन जाने कि जगह जगह की गाड़ियां के अंदर माल सड़ चुका है, उनसे आग निकल रही है और लोगों ने गेट खोल के माल जमीन पे फेंक दिया। वो जब माल किसका था, वो आप लोगों का था, वो मेरा था, वो इस पाकिस्तान का था। तो इस हुकूमत को पता ही नहीं है कि ये 12 दिन मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, ये रास्ता नहीं खुला सकती। मैं ये कहता हूँ कि अगर आज रात इस रात तक रास्ता न खुला, मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कल जिस तरह अफरीदी साहब ने कहा, कल से हम शुरू करेंगे चंडीगढ़ इस्लामाबाद की तरफ हम अपनी मार्च शुरू करेंगे। तो इसको फिर और खोला जाए और ये लोग जो मुसीबत की गाड़ी में खड़े हैं इनको रवाना किया जाए। यकीन जाने तो जो ड्राइवर की पोजीशन है, इस सिंध में इतनी गर्मी है, पंजाब में इतनी नहीं है, जिस हालत में उनको न खाना मिल रहा, न पानी मिल रहा, न उनको कोई और सहूलत मिल रही, वो रोड पे खड़े हैं। 12 दिन हो गए, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है
क्यों? कहाँ गई हमारी हुकूमत वफाकी, कहाँ गई जनाब सूबाई हुकूमत? तो हम इन्हीं के नुमाइंदे थे, इनके हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा, इन्होंने अब तक इनके कान के ऊपर क्यों नहीं देख रही? तो मैं ये इनको दोबारा कहना चाहता हूँ कि अगर आज माल रोड न खुला, हड़ताल न खुली, कल इंशाल्लाह कोई चीज जो लोकल चाह रही पाकिस्तान के अंदर वो भी नहीं चलेगी। हूँ आज पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन का। मेरे दोस्तों ने जो इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान स्टेट गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को तकालीफ है वो आपके सामने पेश करती है। मैं भी अपनी चंद माजूरात आपके सामने रखना चाहूँगा। दोस्तों, 12 दिन से नेशनल हाईवे बंद है। नेशनल हाईवे आम लोगों के लिए सिर्फ एक सड़क है, लेकिन दर हकीकत ये नेशनल हाईवे पाकिस्तान की नेशनल इकॉनमी है। नेशनल इकॉनमी का गला घोंट दिया गया है। जब तक ये नेशनल हाईवे नहीं खुलेगा, पाकिस्तान की इकॉनमी का गेट भी बंद हो जाएगा। हम ट्रक वाले महज एक ट्रक वाले हैं, लेकिन हमारा आम आदमी की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है? आपके ब्रेड एंड बटर से लेकर आपके अद्वियात तक, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मुल्क के तूल अर्ज़ में हम पहुँचाते हैं। अगर हमें मज़ीद इम्तहान में डाला गया और हमारे पहिए को इस तरह रोका गया, तो आप तमाम की ज़िंदगियाँ भी बहरान का शिकार हो जाएंगी। हम लोग ये चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान हमें ये बताए तो सही कि हुकूमत पाकिस्तान की ये बेकसी किस वजह से है। हुकूमत पाकिस्तान क्यों इतनी मजबूर हो चुकी है कि वो चंद लोगों को जो नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके बैठे हुए उनको उठा नहीं पा रही। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो के साथ खड़े होकर ये ऐलान किया था कि हम नहरों के मंसूबे को ख़त्म करने का ऐलान करते हैं, और इस मंसूबे की अप्रूवल हम CCI से 2 मई को हम CCI से इसकी अप्रूवल ले लेंगे। मैं समझता हूँ कि उसी दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इस बात का इज़्ज़त और एहतराम के साथ यकीन किया जाता और रोक खोल दिए जाते और हुकूमती मशीनरी धरना लगा कर बैठे हुए लोगों को वहाँ से उठा दिया, लेकिन ऐसा नहीं। इसके बाद उन्होंने मुतालबा किया कि हमें इसका नोटिफिकेशन दे। नोटिफिकेशन के लिए भी हुकूमत ने दी हुई तारीख से 4 दिन पहले उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कल रात हमने CCI से जो मुश्तरका मफादात की कौंसिल थी उससे बराह रास्त हमने कन्फर्म किया कि ये जो नोटिफिकेशन है ये फेक है या रियल है। तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि ये 110% रियल है। तो हमने कहा कि आप धरने खुल जाएंगे? उन्होंने कहा धरने खुलाना CCI का काम नहीं, ये सिंध हुकूमत का काम है। हमने सिंध हुकूमत से रब्ता किया, उन्होंने कहा हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। 12 घंटे रात के गुजर गए, इनके मुज़ाकरात नहीं हो सके। अब 12 घंटे मज़ीद हो गए हैं। नोटिफिकेशन को जारी हुए 24 घंटे हो गए, लेकिन पाकिस्तान का नेशनल हाईवे नहीं खुला। हम आपके तवस्सुत से हुकूमत पाकिस्तान को ये दरख्वास्त करते हैं कि वो आज ही की तारीख में रात 12 बजे तक नेशनल हाईवे को इन धरने वालों से आज़ाद करवाकर आम ट्रैफिक के लिए उन तमाम के एक्सपोर्ट के कंटेनर वहाँ पर स्टक होकर रह गए हैं। और हुकूमत पाकिस्तान और सिंध हुकूमत की ये खौफनाक किस्म की खामोशी जो है वो हमें खाए चले जा रही है। हमें कुछ समझ नहीं लगता कि हुकूमत तो दोनों हुकूमतों की क्या कमजोरी धरने वालों के हाथ में आ चुकी है, जिसकी वजह से ये दोनों हुकूमतें इन चंद लोगों को बैठे हुए यहाँ से उठा नहीं सकती। रियासत कभी भी इतनी कमजोर दिखाई नहीं दी जितनी इन धरने वालों के सामने रियासत कमजोर दिखाई देती है। मैं बेजत वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि खुदारा आज रात कोई फैसला कर लीजिए। अगर आज रात आपने कौमी शाहरा को न खुलवाया और रियासत की रिट को कायम न किया तो फिर मैं ये समझता हूँ कि अगर रियासत इन चंद लोगों को उठाने पर नाकाम रही है तो हम लाखों ट्रांसपोर्टर अल्लाह के फजल से यहाँ खड़े हो जाएंगे। कोई हमें नहीं। पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की अशियाए ज़रूरत की ज़िंदगी की चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं, अद्वियात ख़त्म होती चली जा रही है, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं। अगर हुकूमत ने होश के नाखन न लिए तो अगले 2-4 दिनों में दुकानों से और हमारे गोदामों से तमाम खाने पीने के सामान और अद्वियात ख़त्म हो जाएंगी। ना तो मरीजों को दवाई मिलेगी, ना जिंदा लोगों को खुराक मिलेगी। तो हमारे पाकिस्तान का बनेगा क्या? क्या हम इसी तरह मजबूर और बेबस होकर बैठे रहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया और पाकिस्तान के अवाम अपने ट्रांसपोर्टर के साथ खड़े हों और कौमी शहरा को खुलाने में आप हमारी मदद करें, हमारा साथ दें। और कल 12 बजे, आज 12 बजे तक रात तक
अगर ये न खुला तो कल हम इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, हम पाकिस्तान की पूरी आवाम को ये बात कहते हैं कि खुदारा आप हमारा साथ दें, और हम मीडिया को भी ये बात कहते हैं कि सिर्फ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने ऑन एयर नहीं करना, बल्कि आप अपने तजज़िये और अपने तबसरे भी इस मौजू पर करें, ताकि हुकूमत सोई हुई को उसकी हक हासिल करने की इजाज़त है, वो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकता है। हम इस हक को तस्लीम करते हैं। जो लोग वहाँ पर बैठे हैं वो अपने हक के लिए बैठे, उनको बैठना चाहिए था वहाँ पर, लेकिन जिन लोगों का ये हक मुतासर हो रहा है, क्या वो इस रियासत की शायरी नहीं? हम नहीं जानते इस बात को कि ये कैसी जमहूरियत है जो किसी एक को तो हक मांगने के लिए एहतजाज करने का हक देती है, लेकिन उसी के एहतजाज में लाखों लोगों का हक मारने की इजाज़त कैसे मिल सकती है? इस रियासत में अगर सबको इजाज़त है तो फिर हमें भी इस कौमी हाईवे के ऊपर मुद्दा लेके आए हैं। तमाम दोस्तों ने आपके सामने एक तफसील के साथ अपनी तकलीफ को गवर्नमेंट के रियासत के सामने रखा। आज 12 दिन हो गए, हमारे ड्राइवर लावारिस, हमारे कारोबार तबाह बर्बाद, हम माल की हिफाजत करते करते थक चुके, हमारे ड्राइवर थक चुके, ड्राइवर हमारे शहीद हो गए, हमारे वहां पे खाने को कुछ नहीं, वहां पे पीने को कुछ नहीं। क्या इसको कोई नहीं देख रहा? अगर जो हमने आपको टाइम दिया है गवर्नमेंट को रात 12 बजे, इनके मुताबिक भी गवर्नमेंट ने मान लिए, ये क्यों रास्ता नहीं खोले? हम इस वक्त दुखी दिल के साथ आए हैं। क्यों? हमें पता है इस वक्त पाकिस्तान किस मुश्किल से गुजर रहा है, हमारी पाक अफवाज किस मुश्किल से हमारी हिफाजत कर रही है उन सरहदों पे, जहां पे इस वक्त एक टेंशन क्रिएट हुई है। हम नहीं चाहते थे कि हम इस तरह का कोई मामला लेके आए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हमारे साथ क्या किया जा रहा है। हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, ट्रांसपोर्ट की, हमारे टोटल इंटरनेशनल तजारत बंद कर दी, हमारा मार्केटों की तजारत बंद कर दी। ये कौन लोग हैं मुट्ठीभर लोग जिन्होंने इस वक्त इन हालात में हमें पाक फौज के शाना पे शाना होना चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे। जब तुम्हारे मुतालबात तस्लीम हो गए, रुक जाओ यहाँ पे, इस वक्त ये वक्त गुजर जाएगा, फिर आप दोबारा बैठ जाना। लेकिन इस वक्त इस मुल्क में तजारत, इस मुल्क में रवानी, इस मुल्क में ये जो तरसील होनी है, अब कब हमें हमारी फौज आवाज है कि आपने ये यहाँ से सामान लेके बॉर्डरों पे जाना है, हम अपने सीने ताड़ के जाएंगे अपनी पाक फौज के साथ। और सिर्फ गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा रास्ता नहीं खुलवाया, हमारे ड्राइवर इस वक्त मजबूर हो चुके हैं, बीमार हैं, जख्मी हैं, कहीं नहीं जा सकते, आप लोगों के माल की हिफाजत कर रहे हैं, तो पूरा पाकिस्तान पहिया जाम होगा। हम ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम मजबूर हो गए। हमने इंतजार किया कि इनके मुताबिक माने जाएंगे, रास्ता कल खुल जाएगा, लेकिन इन्होंने नहीं खोला। अब हमारी जो मुतालबात है वो वहीं पे हमें मजबूर ना करें कि आप फिर रास्ता खोलें तो वहां से हम गाड़ियां ना हटाएं, वहां से हम रोड ना खोलें। 7 दिन हमारी KBK की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की थी, और टेक्सला हसन अब्दाल की, और लोगों जो पिंडी इस्लामाबाद डिवीजन की डंपर एसोसिएशन की, वो भी मौजूद। तो आज हमने इन दोस्तों से ये रिक्वेस्ट की थी कि मसला चूँकि मीडिया सोच रहा होगा कि कराची का और टेक्सला से ये क्यों शुरू कर रहे हैं, तो हमारे साथ हुकूमती नुमाइंदों ने वादा किया था, उसमें सेक्रेटरी मवासलात था, IG मोटरवे था और नेशनल हाईवे का चेयरमैन था। तो हमने पासपोन की थी कि हम उस वक्त लॉन्ग मार्च कर रहे थे, हमारी गाड़ियाँ रोड पे मौजूद थी, हम इस्लामाबाद का रुख कर रहे थे। इन्होंने हमारे साथ वादा वहीद किया, कस्में उठाई हैं कि आप इस्लामाबाद की तरफ मत आओ, जो आपके मसाइल हैं हम हल करना चाहते हैं। तो ये अपने वादों से मुकम्मल तौर पर फिर गए। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि इंशाअल्लाह ताला हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म की थी, और इनको दिखाएंगे और मनवाएंगे कि ट्रांसपोर्ट के जो मामलात हैं वो आपको हल करने पड़ेंगे। ये जुल्म ज़्यादती पाकिस्तान में नहीं चलेगा। पाकिस्तान की मैशियत इस पहिए पे है, और ये मुल्क दुश्मन है जो इस पहिए को रोकना चाहते हैं। अगर मुल्क की मामलात में ये फेर होते
हमारे पाकिस्तान के साथ ये फेयर होते तो ये इस पे ये को चलाते, 1 घंटा भी किसी पे ये को दुनिया में कहीं भी कोई गाड़ियाँ रुकी अगर फाटक पे भी ना, तो वो उनके जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो डीजल ज़ाया हो रहा है इसको हम पुल बना ले, गाड़ियाँ चली जाए रोड के ऊपर से, तो उससे वो चार्ज कर लेते हैं, गाड़ियाँ पहिया चलाते हैं, पहिया नहीं रुकने देते। ये कौन सी गवर्नमेंट है? कैसे लोग बैठे हैं गवर्नमेंट में? इनको समझ नहीं आ रही है। 12 दिन से लोग बैठे हैं, भूखे पैसे बैठे हैं। ये पाकिस्तानी नहीं है तो इंडियन है। यार खुदा के वास्ते कुछ ख्याल करो, नहीं तो कल 12 बजे इंशाल्लाह ताला आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टेक्सला से जो जुलूस आएगा वो गाड़ियों का सीधा आपके पार्लियामेंट की तरफ आएगा और आप भी घर से नहीं। इनसे सिंध में रास्ते बंद हैं, इसकी वजह से 40,000 प्लस गाड़ी हमारी जो यरगमाल है, हमारे वहाँ ड्राइवरों के साथ डकैतियाँ की जा रही हैं, ड्राइवरों को मारा जा रहा है, ड्राइवरों का कत्ल आम किया जा रहा है, उनके सर फाड़े जा रहे हैं, गाड़ियों से सामान छीना जा रहा है, जो ज़बरदस्ती उतारा जा रहा है, जानवर ज़बरदस्ती उतारनी है गाड़ियों पे गन पॉइंट पे, जिसकी आज तक किसी भी थाने में FIR सिंध गवर्नमेंट ने दर्ज नहीं की। हम वफाक गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे के टाइम में इस मामले को क्लियर करवाएं और जो दूसरे हमारे मुतालबात हैं उनकी भी बैठ के हमसे टेबल टॉक करें और उनको भी हल करें। हम नहीं चाहते कि इस वक्त जो हमारी बॉर्डरों की पोजीशन है कि हम ये हालात अपने मुल्क में जंगी हालात बनाएं। एक वकील है, सिंध का एक वकील है, 1000 बंदा नहीं है वहाँ, 1000 बंदा नहीं है, जिसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट और वफाक यरगमाल हो चुकी है। समझते बालातार सियासत हो रही है, नोटिफिकेशन दे दिया, अजलास हो गए, मीटिंगें हो गई, जिस पे अभी तक काबू नहीं पाया गया, रास्ते नहीं खुलवाए गए। हमारे ट्रालर 22 व्हीलर ट्रालर हैं, सादकाबाद से इस्लामाबाद की तरफ कल के रवाना है। दोस्तों ने कहा कि 24 घंटे का टाइम देते हैं, इंशाल्लाह 22 व्हीलर गाड़ियां, डंपर 10 व्हीलर, तमाम गाड़ियां और 90% प्लस हमारी एसोसिएशन जो है चारों सूबों की यहाँ मौजूद है और ट्रांसपोर्टर भी मौजूद है, बाकी ट्रांसपोर्टर भी आ रहे हैं। हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए, हमारी बातें ना तस्लीम की गई, तो इंशाल्लाह ताला कल इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। हम आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले को फिर फौरन हल करवाएं। 24 करोड़ आवाम का ये मसला है, अकेला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का चेयरमैन, बहुत शुक्रिया मीडिया का और तमाम ट्रांसपोर्ट का शुक्रिया जो सारे आज इधर इकट्ठे हुए, उनका सबका बहुत शुक्रिया। सब भाइयों ने बात की जी, किसी ने टेक्सला की बात की, टेक्सला से आएंगे और कोई सादकाबाद से कह रहे हैं, हम तो ये कहेंगे कि कल तक अगर ये मामला हल ना हुआ तो पूरे पाकिस्तान में हमारी ट्रांसपोर्ट बरादरी खड़ी होगी इंशाल्लाह। कोई सिर्फ टेक्सला इस्लामाबाद या लाहौर की, पंजाब की बात नहीं हो रही, पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। पूरे पाकिस्तान में एहतजाजन अपनी ट्रांसपोर्ट हम सारी खड़ी करेंगे। बाकी रहेगी बात, सबने बात की जी मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, बिलावल साहब की, उनकी बातें तो हमने देख ली। जब उनकी बात को कोई सुना ही नहीं जा रहा, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे आर्मी चीफ साहब को उनकी किरदार अदा करें और इस मसले को कोई हल निकालें, वरना हमारा मुल्क आगे चलने के काबिल नहीं है। अगर यही सूरत हाल है तो आगे हम नहीं चल सकते और अपनी ट्रांसपोर्ट भी नहीं चला सकते। तो लिहाजा अगर रात तक ये रोड नहीं खोलते, धरना खत्म नहीं करते, कल से पूरे पाकिस्तान में हम अपनी ट्रांसपोर्ट सारी खड़ी कर दें और बंद कर दें। अवैस एडवोकेट साहब जो हैं वो आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों का, मेरा नाम मोहम्मद अवैस चौधरी एडवोकेट है, मैं प्रेसिडेंट हूँ और पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन। मुझे बड़े अफसोस से दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम सब लोग इस मामले को किस तरह लेके यहाँ पे प्रेस करने बैठे हैं। हम इन हालात में नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में इस किस्म की एक सिचुएशन पैदा हो जब हमारी अफवाज इस वक्त इंडिया के साथ कशीदगी का एक माहौल है, और इस वक्त ये वो मौका था जब हमें खड़ा होना चाहिए था अपनी अफवाज के साथ, हमें उन्हें मजबूत करना चाहिए था, हमें उनके साथ खड़े होकर उनके शाना बशाना हमारे दुश्मन को पैगाम देना चाहिए था कि हम मुत्तहिद हैं, हम इकट्ठे हैं और हम हर किस्म की जारहियत का, हर किस्म की जंग का और हर किस्म की साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 12 दिन से हमने इंतज़ार किया सूरत हाल को हमारी सियासी हुकूमत या हमारे रियासती अदारे संभाल लें। आज मजबूर होकर यहाँ पे बैठे हैं
आज गवर्नमेंट को मेरे दोस्तों ने जो टाइम दिया है 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं, और ये वक्त हमारी जो सूरत हाल है, जो हमारी तकालीफ है, वो तो एक तरफ। मैं ये समझता हूँ कि जो रियासती अदारे हैं उन्हें समझना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता देखिए जब कोई बैरूनी ताकत या कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क पे हमलावर होता है तो उसकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि इस मुल्क की सप्लाई लाइन को तोड़ दिया जाए। सबसे पहले उससे मुल्क में क्योस पैदा होता है, उसमें अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है, लोगों तक अशियाए ज़रूरिया नहीं पहुँच पाती, और उस वक़्त जंग का जो आधा मकसद होता है दुश्मन का वो पूरा हो जाता है। हमारी बदकिस्मती देखें कि हमारे अपनों ने ही हमारी जो लाइन है, लाइफ लाइन है, उसको काट दिया हुआ है। 2 सूबों में, सिंध में, पंजाब में, और जो बलूचिस्तान से कोयटा की तरफ से माल आ रहा था वो भी रुका हुआ है। 12 दिन से तो हम मफलूज हो गए हैं। हमें ज़रूरत है कोई बैरूनी दुश्मन की, कोई और दुश्मन आके हमें मारे? हम तो अपने दुश्मन खुद बन के बैठे हुए हैं। हमें बदकिस्मती से, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें कोई शौक नहीं था यहाँ पे आके बैठने का, हमें कोई शौक नहीं है पाकिस्तान में सड़कों को बंद करने का, एहतजाज करने का। देखें आमतौर पे ट्रांसपोर्टर्स आके हड़ताल के लिए बैठते हैं, रोड बंद करेंगे, ये करेंगे। हम यहाँ पे बैठे हैं कि सड़कें खोलो, मुल्क बचाओ, सड़कें खोलो, मैशत बचाओ, सड़कें खोलो, फौज का साथ दो, उसके लिए बैठे हैं। हमारा मुतालबा है कि या आधा तीतर आधा बटेर वाला काम नहीं चलेगा, या तो वो खुलवा दें या फिर हम बंद करने लगे हैं, फिर हमसे खुलवा के दिखाना। गवर्नमेंट से भी है और हमारा मेन जो है फेडरल गवर्नमेंट से है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, और इसके साथ हमारा ये मुतालबा आर्मी चीफ से भी है कि हमें इस मसले से हटाया जाए, क्योंकि ये मुल्क चलने दिया जाए। हमने पहली दफ़ा, हम जो इधर बैठे हुए लोग हैं, हम चलाना चाहते हैं, लोग बंद करना चाहते हैं। हमारा एहतजाज मुल्क को चलाने के लिए, हमारे जितने भी मुतालबात है वो कानून और आइन पे चलने के लिए। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिसको इस मुल्क की इंडस्ट्री नहीं मानती, और फेडरल गवर्नमेंट इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकती। जिस मुल्क में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो उसके बाद आवाम खुद कानून अपने हाथ में लेती है। और आपने कहा कब आएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी यूनियन तो कल भी वहाँ थी और वापस आई। जितना हमसे उनको सपोर्ट करा हो रहा है कि हम करें, उनके लिए बंदोबस्त करें, लेकिन ये जितने बड़े लेवल पे काम है, लाखों लोगों का काम है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नुकसान की जो आप बात कर रहे हैं, हम जो आपके सामने लोग बैठे हैं, ये पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्री है जो एडवांस टैक्स देती है। हमारे अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई भी एडवांस टैक्स नहीं देता, और उसके जो एडवांस टैक्स देता है उसके साथ सबसे बड़ा बुरा सलूक है। नुकसान की बात यह है कि हमने आपको कहा कि हमारे 3 आदमी शहीद हो गए, हमारे अभी भाई ने कहा एक और आदमी भी शहीद हो गया, और 4 आदमी शहीद हैं, और हमारे कम से कम 5-6 गाड़ियां जल गई हैं। और इस वक्त आलू का जो एक्सपोर्ट का था उससे ग्रीस बन चुका है। इस तरह बहुत से माल हैं जो खराब हो चुके हैं, तो उसका तखमीना लगाना बहुत मुश्किल है, और ये चाहिए कि गवर्नमेंट खुद इसकी जिम्मेवारी ले, जिनके नुकसानात है वो दें। ये ट्रांसपोर्ट जितनी भी है ये किसको ये मुल्क हमारा है। इस वक्त जो मुल्क में कशीदगी है, उस कशीदगी की वजह से हमें पाक फौज के साथ मुल्क के दिफा के लिए ये सारे ट्रांसपोर्टर, अगर खुदा न खास्ता हमारा बेगैरत दुश्मन इंडिया कुछ भी करता है तो हमारा अड्डा, हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारी फौज के लिए हर वक्त इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।